Hello everyone, and hope you all are good. I'm also fine. Good with class. Am I audible? Visible? Can you see the screen? Everything perfectly? Can everyone, uh, my video over there me perfectly? You then let me know. Okay, only one of you voted actually. So आप लोग नहीं everyone vote. चलो ठीक. I will be ending the poll. Thank you. That's what we are going. The welcome, but then Ceylon, because Arun is not a your class. So your problem solved. Nothing to worry about. I will be English in the lecture today. Uh, Hindi and English mix. Okay? So that is how things will go. Chalo. So what we are going to do, we are going to solve some questions from whatever thing we studied in the previous class, or I would say whatever portion of thermal properties of matter we studied in the previous class. From that portion, first we will be solving four questions previous, or you can say that will be basically PYQ. We have selected question sort of, or what types of questions actually come from this. So based on that, I have sort that will be very much in understanding sort of question actually come in the examination. So let's start with the very first question. This came in 2019. So I will be giving 5 minutes. Take your time. 1.5 minutes. Okay. अच्छे से समय लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. आई एम लॉन्चिंग द पोल. और यू कैन ऑल्सो इन chat display. My voice is one. Yes, then I will change the network. Okay, ठीक है. I will take care of it. In the meantime,
Yes. Am I audible now perfectly? Okay, I will keep my video off actually so that network. Okay, take your time. I was not speaking actually. Rohit, can you hear me now? Speaking actually, I was giving you time to solve the question. Can you hear me now? Yeah. So I was not speaking actually. You can now solve the question and let me know. Okay? Chalo. How many of you did it? How many of you did it? Okay, should I do this? Everyone, should I do this? Hyderabad region, have you studied this topic, thermal expansion? कितने लोग पढ़े हो? How many of you have read it? Thermal expansion I'm talking about. कितने लोग पढ़े हैं? Yes. रोहित, प्रवीण, टिम्पल, सुहरा, अजमाला, कितने लोग पढ़ चुके हो? जेनवी, मोरबी, तो तुम लोगों को तो मैंने पढ़ाया है. आई एम आस्किंग विथ हैदराबाद रीजन एंड शिलोंग रीजन. Nobody responding. पढ़े हो? चलो ठीक है. ठीक है, let's do the question now together. So two different wires having length L1 and L2. We have two different wires. This is wire 1 of length L1 and then there is another wire of length L2. Then and they are connected end to end. Then the effective temperature coefficient of linear expansion is. Uh, and in the question, it is given that for the first wire, coefficient of linear expansion is alpha 1, and for the second wire, coefficient of linear expansion is alpha 2. And we have to calculate effective temperature coefficient of linear expansion. Yani ki we have to calculate effective or we have to calculate a linear expansion coefficient of the wire of length L1 plus L2. Then combined. So how we will do this? First, you just see here, if we talk about L1 plus L2 length of the wire, then change in length of L1 plus L2, that is change in length. Final length after heating, we are changing its temperature by delta T. ठीक है. So what should be its length? Its length should be L1 plus L2 into 1 plus alpha effective delta T. And this alpha effective we have to calculate.
right? This is the formula. Done. We have studied if there is a L length of wire, and if you are increasing its temperature by delta T, then its length will become L into 1 plus alpha delta T, where alpha is the linear coefficient, uh, uh, linear expansion coefficient or thermal expansion coefficient in linear dimension. Okay, so this is the formula, right? So same formula I used here, and we have to calculate alpha effective. Now how we can calculate this? So एक चीज ध्यान से देखो, क्या हम L1 plus L2 dash निकाल सकते हैं? Final length of L1 plus L2 after change in temperature delta T. So ध्यान से देखो क्या होगा, L1 प्लस L2 में कितना लेंथ चेंज होगा, जितना L1 में होगा प्लस जितना L2 में होगा। डन है। सो L1 प्लस लिखना है तो क्या लिखेंगे, L1 डैश प्लस L2 डैश, है ना, दोनों का चेंज लिखोगे। और L1 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और L2 डैश क्या हो जाएगा, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू कम। सो चलो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, सही से लिखती हूँ। सो L1 प्लस L2 डैश को मैंने लिखा L1 प्लस L2, L1 डैश प्लस L2 डैश, and this is equal to L1 1 plus alpha 1 delta t, and this is L2 1 plus alpha delta t। अब इसको तुम अरेंज करके लिख लो। सो दिस इज L1 प्लस L2 प्लस डेल्टा टी को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2। So this expression we got L1 plus L2 dash। नाउ मैंने ये बोला था कि L2 प्लस L1 डैश किसके बराबर था, L1 प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी। नाउ ये वाला वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इस वैल्यू में तुम क्या करो, वैल्यूज को पुट करो। सो इफ यू आर गोइंग टू पुट इट, व्हाट विल हैपन, यहां से देखो लिखो। सो L1 प्लस L2 प्लस डेल्टा टी, एंड दिस इज L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू हाउ मच, L1 प्लस L2 प्लस हाउ मच, L1 प्लस L2 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी। कुछ ऐसा आ रहा है ना। अब देखो L1 प्लस L2 यहां से कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, डेल्टा टी L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इंटू L1 प्लस L2, है ना। सो डेल्टा टी कट जाएगा। अब देखो अल्फा इफेक्टिव क्या हुआ, ये हुआ L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ वन, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट, कितने लोगों को समझ में आया कि ऐसे निकालना था। ध्रुवी, कैसी हो, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट, यस, कितने लोगों को समझ में आया। आई फील लाइक जेएनवी भावनगर इज फेसिंग इंटरनेट इश्यूज। एनीवे, जितने लोग प्रेजेंट हो उतने लोगों में कितने लोगों को समझ में आया, लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट। रोहित, प्रवीण, सूरा, डिम्पल, अजमाला, एवरीवन एल्स, जेएनवी, मोरबी, हेलो। यस मैम, यार प्लीज बता दो, क्योंकि तुम लोगों ने बोला ना नेटवर्क इशू है मेरा, तो मुझे बार बार लग रहा है क्या पता तुम लोग सुन नहीं पा रहे हो, इसलिए आई एम आस्किंग मोर। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जहां पे तुम्हें दो तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजें देगा, साथ में अटैच्ड होगा, एंड देन साथ में यू विल बी हिटिंग होल सिस्टम, एंड देन इट विल आस्क कि अल्फा इफेक्टिव बताओ, या फिर गामा इफेक्टिव, दैट इज योर थर्मल कोएफिशिएंट वॉल्यूम, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, कुछ भी पूछ सकता है। सो ये एक टाइप का क्वेश्चन है विच यूजुअली कम्स। नाउ सेकेंड टाइप में जाते हैं।
इस क्वेश्चन को करो. इट ऑल्सो केम इन नीट एंड जेई मेंस बोथ, सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. वैसे दोनों फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है. सो अगेन टेक 1.5 मिनट. डू द क्वेश्चन. आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल. Read the carefully and same time uh, try to understand. ओके, एमसीक्यू पोल लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. आई एम रियली सॉरी. दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन. ठीक है. सो यू नीड टू राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. राइट द आंसर इफ यू आर गेटिंग इन द चैट बॉक्स. क्योंकि यहाँ पे एबीसीडी कुछ है नहीं. किसी ने सी आंसर किया, कैसे किया? हमें सॉल्व. कितने लोग सॉल्व करो? एवरीवन. कितने लोग सॉल्व कर रहे हो ये बताओ. तो now इट लाइक बीकर. हमारे पास एक कंटेनर है. डन. एंड इट हैज ए वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब 30 डिग्री. सो इट्स वॉल्यूम इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ बीकर वी नॉट से इंडिकेट करती हूँ मैं. सो दिस इज गिवन एज 500 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री. ठीक है. व्हेन इट इज पार्शियली so it is partly the is became and that is active very so active. So
Okay, I'm really sorry. It got disconnected. ओके, सो हम लोग कहाँ थे? वी वर डिस्कसिंग कि अगर तुम्हारा इनिशियली जो वॉल्यूम है, यू आर एबल टू हियर मी राइट? तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो, है ना? सो आई वाज डिस्कसिंग इनिशियली तुम्हारा अनफिल्ड वॉल्यूम एट 30 डिग्री कितना है? वी नॉट माइनस वी एम एट 30 डिग्री, right? Now what is given in the question? It is found that unfilled volume of beaker remains constant as temperature is varying. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, ये जो अनफिल्ड वॉल्यूम है दैट इज वी नॉट माइनस वी एम, ये हर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रह रहा है। डन है? So then we have to find out what will be the value of Vm. So if V naught minus Vm, that is unfilled volume is constant, इसका मतलब क्या है? सपोज कर लो इस बीकर को तुमने डेल्टा टी टेम्परेचर से हीट कर दिया। डन है? सो इफ यू आर गिविंग इट हीट एंड इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ गया? डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी से तुम्हारा मरकरी का टेम्परेचर बढ़ा है जो उसके अंदर है, और बीकर का भी टेम्परेचर बढ़ा है। सो बीकर का वॉल्यूम बढ़ेगा और मरकरी का वॉल्यूम बढ़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वॉल्यूम ऑफ बीकर, बीकर एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी, तो सपोज कर लो वो है तुम्हारा वी डैश। एंड सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ मरकरी, मरकरी का वॉल्यूम लिखो एट एनी टेम्परेचर टी डैश, एट एनी टेम्परेचर टी। ठीक है? ये सपोज कर लो तुम्हारा कितना है? ये है तुम्हारा वीएम डैश। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अनफिल्ड वॉल्यूम कितना बचा? वॉल्यूम ऑफ बीकर एट टेम्परेचर टी माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी एट टेम्परेचर, इतना होगा अनफिल्ड, है ना? और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनफिल्ड हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि वी नॉट माइनस वी एम ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी एम डैश ऑफ एनी टेम्परेचर टी, है ना? ये सारा का सारा तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। ये सारा का सारा तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। डन है? सो ये रहा तुम्हारा, इस यही इक्वेशन है जिसको तुम्हें सॉल्व करना है। अब तुम ध्यान से यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर दो। तो पहले वी नॉट माइनस वी एम को लिखो। सो वी नॉट माइनस वी एम तो तुम्हारा वी नॉट माइनस वी एम है। वी नॉट का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? दिस इज 500 सीसी। सो आंसर भी हमें सीसी में ही लाना है, सो वी डोंट नीड टू चेंज इट। यहाँ पे सिंपली तुम क्या लिख दो? यहाँ पे लिख दो 500। एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बिकर। वही था ना, जैसे वी नॉट माइनस वी एम को हमने क्या लिखा था? वी डैश माइनस वी एम डैश। सो वी डैश इज व्हाट? न्यू वॉल्यूम ऑफ बिकर एट टेम्परेचर टी। इसको हम वी डैश को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वी नॉट वन प्लस गामा बीकर डेल्टा टी, है ना? और वी एम डैश को क्या लिख सकते हैं? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मरकरी एट टेम्परेचर 30 डिग्री, वन प्लस एंड दिस इज गामा मरकरी डेल्टा टी। सो उन्हीं सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। सो इक्वल टू साइन के बाद मैं क्या लिखूं? वी नॉट प्लस वी नॉट गामा बी डेल्टा टी प्लस वी एम, सॉरी माइनस करेंगे ना, माइनस करना है, एक सेकेंड। यहाँ पे माइनस है ना, माइनस वी एम है। सो माइनस करो। माइनस क्या होगा? वी एम और वी एम प्लस ये गामा एम। ठीक है? वी एम प्लस वी एम गामा एम डेल्टा टी। अब इन सारे को सॉल्व करो। अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? 500 माइनस वी एम इज इक्वल टू वी नॉट मीन्स 500, है ना? और यहाँ पे माइनस वी एम को साथ में ले लो, प्लस ये वाला टर्म दैट इज योर वी नॉट गामा बी डेल्टा टी, और ये वाला टर्म माइनस कितना जाएगा? वी एम गामा एम डेल्टा टी। अब देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या बचेगा? बचेगा वी नॉट गामा बी डेल्टा टी इज इक्वल टू वी एम गामा एम डेल्टा टी। अब आप डेल्टा टी को कट कर दो और यहां से मुझे वीएम मिल जाएगा। सो वीएम कितना हुआ? वी नॉट गामा बी डिवाइडेड बाई गामा एम। सो वी नॉट कितना है हमारा? वी नॉट है 500 सीसी था। गामा बी कितना है? क्वेश्चन में जाओ। सॉरी, पहले जाना है मुझे। गामा बी है 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 6। तो यहाँ लिखूंगी 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 6।
और गामा एम कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻4। नाउ सॉल्व दिस, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, यहाँ से एक 10 को हटा दो, 6 इंटू 10 60, और 15 से 60 कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में। एंड 5 इंटू 4 कितना होगा, 20। सो दिस इज 2000 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4। So overall, if you're going to solve, this is 20 cc. So correct answer will be 20 cc. I mean, what you needed to understand is basic thing कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, सिंपली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो गिव मोर टाइम टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? हरमित, नेटवर्क नहीं था क्या? ध्रुवी? ओके, आई गॉट यू। एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी के पास कोई डाउट है इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन में? प्लीज यार रिस्पॉन्ड किया करो, प्लीज, आई एम जस्ट बेगिंग। ठीक है, थैंक यू सोहरा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का हमने किया, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे कम फ्रॉम दिस टॉपिक। अगेन आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट। ठीक है, सो सॉरी, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, I have launched the poll. You can answer there also, and also in the chat section you can write. I always appreciate you people writing in the chat section. That is more encouraging. क्योंकि हमारी बातें भी हो जाती है, एंड आई गेट टू नो कि तुम लोगों को क्या इशू हो रहा है, पर्सन वाइज आई गेट टू नो कि कैसे सॉल्व कर। ठीक है, सो यू कैन डू बोथ वेज। ओके, आई गॉट सम आंसर्स, टू आंसर्स आई गॉट। Can these two people send me text in the chat box? Yes. देखो, ये टेम्परेचर स्केल से है, और मैंने बहुत ही प्यार से तुम लोगों को टेम्परेचर स्केल पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से बताया था कि अननोन टेम्परेचर स्केल को कैसे कैलिब्रेट करना है। देखो, यहाँ क्वेश्चन भी है, दिस इज फ्रॉम जेई मेंस, सो ये, और ये 2020 में आया है। सो क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से। ओके, चलो ठीक है, लेट मी डू देन। A thermometer graduated according to a linear scale reads the value x naught when in contact with boiling water. So you have a unknown temperature scale, ठीक है, और इसको अगर boiling water में डाला है, boiling water, तो तुम्हारा ये कितना रीडिंग दे रहा है, ये रीडिंग दे रहा है x naught, यानी कि boiling point on this scale, boiling point is x naught, and it is given in the question when you are dipping it in ice, it is giving you reading x naught by 3, यानी कि melting point is x naught by 3। मैंने तुम लोगों को बोला था कोई भी स्केल जब हम बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट है अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोअर फिक्स पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मुझे इस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट पता है और लोअर फिक्स पॉइंट भी पता है। Now, what is the question? What is the temperature of object in degree centigrade? This is not 0 degree, sorry. This is degree centigrade.
इफ दिस थर्मोमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड एक्स नॉट बाई टू, यानी कि ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर का रीडिंग इस अननोन स्केल पे कितना है, एक्स नॉट बाई टू। तो तुमसे पूछा है सेंटीग्रेड स्केल, जिसका अपर पॉइंट होता है 100 डिग्री, लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री, इस पे रीडिंग कितना होगा। यानी कि स्केल पे वैल्यू है एक्स नॉट बाई टू, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने सिंपल तुम लोगों को बताया था कि पहले एक स्केल के वैल्यू को नोट करो। वैल्यू कितना है, एक्स नॉट बाई टू। सो एक्स नॉट बाई टू को लोअर फिक्स पॉइंट से सब्सट्रैक्ट करो, एंड डिवाइडेड बाय क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज दिस। अब सेकंड स्केल पे सेम काम करो, सपोज करो इसमें इसकी रीडिंग एक्स है। ठीक है, सो क्या लिखोगे, एक्स माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर। सो इन दोनों को अब क्या करो, इक्वेट कर दो। मैंने बोला था ना सिंपल ये करना है। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, एक्स नॉट बाई सिक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स नॉट बाई थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 100। if you're going to solve it, it will become how much, x naught कट जाएगा, so this will become 3 by 12 is equal to x by 100. So if you see carefully, 4 से फिर ये 25 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू क्या है, 25, यानी कि 25 डिग्री। डन, सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, B. How many of you got it now? Anyone having any doubt with its calculation? प्लीज हेल्प मी। देखो मैं यहीं बैठी हूँ, आई एम नॉट टर्निंग माई कैमरा ऑन क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू है। सो आई वांट कि तुम लोगों को वॉइस सही से समझ में आए, बट डोंट फील लाइक कि मैं इधर नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ, बोल रही हूँ ना, है ना। हरमित थैंक यू। चलो, ओके ध्रुवी, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम दिस पोर्शन। ऐसा कुछ तुम्हारा सोरा, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी यू गॉट इट करेक्ट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है थर्मल एक्सपेंशन और तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस को मिक्स करके। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। सो दिस इज फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम। अगेन टेक 1.5 मिनट, do solve it and let me know what answers you are getting. Please be competitive in a positive way. सभी लोग क्वेश्चन करो यार, थोड़ा कंपटीशन दिखाओ, तुम लोग एकदम सुस्त बैठे रहते हो, इतनी शांति क्यों है बता। हम्म, इतने चुपचाप बैठे हो जैसे लग रहा है जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, मोह माया सारा त्याग दिए हो। ऐसा थोड़ी होता है, माया को जिंदा रखो। चलो, नाउ आई डोंट हैव टू स्पीक, इसलिए आई हैव टर्न माय कैमरा ऑन। तो तुम लोग 1.5 मिनट लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाय प्रगति, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर ज्वाइनिंग आई गेस। प्रगति, आई रियली मिस्ड यू। ओके सो बट इट्स नॉट करेक्ट, one mistake you people are doing, I guess. I can get it from where you are getting that too. प्रगति, अच्छी हो, एवरीथिंग ऑल राइट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर। अच्छा, नेटवर्क इशू, हाँ, या दिस इज अ बिग इशू एक्चुअली। ओके, आई गॉट 2 आंसर्स बट कोई भी करेक्ट नहीं है, क्या हो गया, करेक्ट क्यों नहीं आ रहा।
जेनवी मोरबी, यस, वेरी गुड, गुड, यू डिड, थैंक यू। चलो ठीक है, आई एम एंडिंग द पोल नाउ एंड विल सॉल्व इट टुगेदर। तो चलो साथ में सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है ऐसा, और हम क्या कर रहे हैं, इसका लेंथ है एल एट टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एरिया ऑफ क्रॉस ए है और लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, इज मेड ऑफ मेटल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो इधर से एफ, सॉरी कैसा फोर्स लगा है पहले ये देख लेते हैं। कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यानी कि कंप्रेस करना है तो ऐसे लग रहा होगा एफ, और इस साइड से भी लगा ऐसे एफ। तो कुछ लोगों ने नेट फोर्स 2F कर दिया, नेट फोर्स नहीं देखना हमें, लिखते हैं इफ यू रिमेम्बर मॉड्यूलस का क्या लिखते हैं हम, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग, है ना, यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से लीनियर डायमेंशन चेंज हो रहा है, डन, और स्ट्रेस तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द एरिया लग रहा है, डन है। सो दिस इज व्हाई वी आर अप्लाइंग लाइक वी आर यूजिंग यंग्स मॉड्यूलस। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कितने स्ट्रेस से उसको आइदर तुम एक्सटेंड कर रहे हो या कॉम्प्रेस कर रहे हो। सो यू डोंट हैव टू राइट हियर 2F/A, जस्ट लुक एट कि कौन सा फोर्स है जो कि इसको कॉम्प्रेस कर रहा है, सो दैट इज एफ। सो हियर यू विल राइट F/A एंड दिस इज इक्वल टू वाई डेल्टा L/L, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, है ना। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Compressive force F is applied on each of its ends, prevents any change in the length of rod when its temperature rises by delta K, delta T, Kelvin, ठीक है। सो बेसिकली अगर तुम एक रॉड ले रहे हो और इसको अगर हीट कर रहे हो, तो हीट करने से क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा। सो बढ़ते हुए लेंथ को रखने के लिए हम इधर से कंप्रेस कर रहे हैं इसको, जिन लेंथ इंक्रीज इन लेंथ होगा दैट विल बी सेम एज इन हीटिंग, है ना। सो इंक्रीज इन लेंथ फॉर डेल्टा टी, है ना, एंड दिस मच लेंथ will decrease, no net change in the length, right? So यहाँ, right, so let's write it now। किसी को डाउट है, F/A इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल को क्या लिखोगे, एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। सो एल एल कैंसिल हो जाएगा, हमें वाई निकालना है, एफ बाई अल्फा डेल्टा, सो इसको एक ही चीज है, प्रेसिव लगा रहे हो दोनों एंड से, तो नेट फोर्स तुम्हें 2F, वी आर डील व्हाट, स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस, जस्ट हैव टू लुक एट स्ट्रेस क्या लग रहा है, अप्लाई दिस, क्योंकि देखो भी स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से जो चेंज इन बी इक्वल टू दिस एल अल्फा डेल्टा टी। सो हैविंग एनी डाउट इन दिस, किसी को डाउट है, सी वी वी हैव टू टेक स्ट्रेस, फोर्स को हम ऐड करते, अगर तुम नेट फोर्स यहाँ पे देखो तो नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, सो सिंपली वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रेस, ठीक है, सिंपल है, हमें स्ट्रेस की बात करनी है, यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो है, राइट, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सो नेट फोर्स तुम्हारा क्या है, जीरो है यहाँ पे। सो यू सिंपली नीड टू टॉक अबाउट स्ट्रेस, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो नो डाउट, इसका मतलब चलो, मैंने तुम लोगों को जो जो टॉपिक प्रीवियस क्लास में कराया था उन सारे टॉपिक से मैंने क्वेश्चन करवा दी। सो बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, ठीक है, ये बताया तुम्हें। तो भी अननोन टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर स्केल कैसे कैलिब्रेट करना है वो याद रखना, क्या चाहिए मुझे, अप लोअर, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस टू थिंग्स,
राइट। और इसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पढ़ा, केल्विन पढ़ा था। सो सेल्सियस में तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तुम्हारा, 0 डिग्री। उसी तरह से फ़ारेनहाइट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बताओ, बोलते हो 218, 212 डिग्री, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेल्टिंग पॉइंट इज हाउ मच, दैट इज डिफरेंस 180 केल्विन पे। अगर बॉइलिंग पॉइंट कितना लेते हैं, 70 केल्विन, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाउ मच, दिस इज योर 273 केल्विन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। उसके बाद मैंने बात करी थी एक्सपेंशन की, उसके बाद एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन क्या हो, तो इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में एल नॉट है, डेल्टा टी लेंथ एल होता है, तो एल को क्या, नॉट नियर डेल्टा टी, है ना। उसी तरह से एरिया इनी, बाद मैंने तुम लोगों को दो बताई थी, तुम्हारा ये जो अल्फा एल, ओके सॉरी, आई एम फेसिंग network issues, I'm really sorry. Am I audible now? हरमित, अभी अभी क्लियर है वॉइस, अभी क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू, थैंक यू। यार वो बीच बीच में चला जा रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, सो कहाँ तक मैंने कैच, तुम लोग कहाँ तक कैच किए, ये अल्फा ए अल्फा वी हो गया था? इफ यू कुडंट कैच देन यू कैन लेट मी नो, प्लीज कोऑपरेट। ओके, ऑन दिस स्लाइड, चलो ठीक है, ठीक है, सो आई विल रिपीट। सो एक्सपेंशन कितने तरह के मैंने बताए थे, एक्सपेंशन था, एक था तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन, और एक था तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था, लीनियर एक्सपेंशन में भी सॉ, ओके, हरमित, एम आई ऑडिबल? दिस इज पैथेटिक टुडे, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, नॉट क्लियरली, ओ गॉड, not now, okay, I will try. If I'm anyway audible then let me know. So linear expansion में मैंने क्या बताया था, linear expansion में I told you कि if we have a rod, it is L naught suppose, okay Dimple, its original length is L naught suppose, and heating it by temperature difference delta T, I mean we are heating it so that temperature difference of delta T, then it's when, and suppose final length is becoming L, then L will be equal to how much, L naught 1 plus alpha linear expansion coefficient. ठीक है, सिमिलरली इफ वी हैव समथिंग ऑफ एरिया ए, सपोज कर लो ए नॉट एरिया है, एंड नाउ वी आर गिविंग इट हीट, done it, and such that its temperature is changing by delta T, then its final area after change of temperature delta T will be A equal to A naught 1 plus
अल्फा ए डेल्टा टी। ठीक है। एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन थिंग, सो इफ वी हैव समथिंग ऑफ वॉल्यूम वी नॉट at temperature T naught, suppose, and we are giving it heat, its temperature is increasing by delta T, then final volume V will be V naught 1 plus alpha V delta T. Am I audible? Can you hear me now? Yes? ओके ओके ओके, आई एम ग्लैड, आई एम, थैंक यू। सो और उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था रिलेशन बिटवीन अल्फा ए, अल्फा एल एंड अल्फा वी। सो अल्फा ए तुम्हारा क्या था, 2 अल्फा एल था। अल्फा वी तुम्हारा क्या था, 3 अल्फा एल था, दिस रिलेशन। उसके बाद जो मैंने बताया था तुम्हें कि जो अल्फा एल होता है और अल्फा ए होता है, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड्स ऑन मटीरियल। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन मटीरियल, है ना। और मैंने बोला था जो अल्फा वी है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, है ना। ये लास्ट में मैंने तुम लोगों को कर्व बताया था। सो आफ्टर दैट हमें क्या पढ़ना है, देखो अल्फा वी का वैल्यू अगर हमें सपोज कर लो आइडियल गैस के लिए निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर। सपोज तुम्हें क्वेश्चन ये दिया कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि आइडियल गैस है, ठीक है, और तुमने इसको हिट किया और इसका वॉल्यूम चेंज हुआ। सो अल्फा वी का वैल्यू बताओ। सो अल्फा वी कैसे निकालोगे, इनिशियल वॉल्यूम कुछ भी वी नॉट ले लोगे, है ना। सो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग बाय टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डेल्टा टी, वी को क्या लिखोगे, वी नॉट 1 plus alpha v delta t, ठीक है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज सेम, डन है। सो हाउ वी कैन डील विद दिस, गैस के केस में हम निकाल रहे हैं। सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा वी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट प्लस वी नॉट अल्फा वी डेल्टा टी। सो v माइनस वी नॉट बाई वी नॉट डेल्टा टी किसके बराबर होगा, अल्फा वी। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, and this thing we will calculate for gas. So let's calculate it. PV equal to mu RT. So अगर यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो फर्स्ट इक्वेशन का, तो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू म्यू R डेल्टा T, एंड प्रेशर इज कांस्टेंट तो ये जीरो हो जाएगा। इसीलिए we can write P delta V equal to mu R delta T. Now you can write here delta V will be equal to what, mu R by P delta T, ठीक है। सो दिस इज योर डेल्टा वी, हियर वी कैन राइट व्हाट, म्यू आर डेल्टा टी बाई पी, ठीक है। अब देखो डेल्टा वी हमारा इतना आया, म्यू आर बाई पी डेल्टा टी, और इस म्यू आर बाई पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पीवी इक्वल टू क्या था, म्यू आर टी। सो म्यू आर बाई पी किसके बराबर होगा, वी बाई टी होगा बराबर म्यू आर बाई पी के। सो यहाँ पे हमने म्यू आर बाई पी को वी बाई टी कर दिया फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। सो डेल्टा वी, वी बाई टी इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर दो, यानी कि डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को लिख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट बाई टी, इनिशियल टेम्परेचर डेल्टा टी, और यहाँ पे था क्या, डेल्टा टी पहले से था, इज इक्वल टू अल्फा वी। सो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे वी नॉट भी था। सो ओके, मैंने सही सही लिखा है ना, हाँ। सो दिस इज वी नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्फा वी तुम्हारा किसके बराबर आएगा, अल्फा वी इज इक्वल टू 1 बाई टेम्परेचर, डन है। तो ये कभी कभी पूछता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी ये कैलकुलेट किया है। सो अगर अल्फा वी का वैल्यू तुम्हारा, क्योंकि गैस के लिए हम लीनियर एक्सपेंशन की बात नहीं कर सकते, एरियल एक्सपेंशन की बात नहीं कर सकते, गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। सो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। So alpha V for gases also depend on temperature inversely, and for solids also it depends on temperature. जैसे solids के लिए मैंने तुम लोगों को ड्रॉ किया था, सो कर्व कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था ना, इफ यू रिमेम्बर कुछ ऐसा। सो हाई टेम्परेचर पे अल्फा वी तुम्हारा कांस्टेंट दिख रहा था, बट अदरवाइज अल्फा वी टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, डन है। So for solids we did in previous class, and in this class we did for ideal gas. Anyone having any doubt so far? किसी के पास डाउट है?
Anyone, any doubt? Come on yaar, let me know if you have anything. Okay, Sora, thank you. चलो ठीक है. So if this is done, then this is very good. Now anomalous behavior of water. इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है. अब देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 kg of water we have taken and here there is temperature. So देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ वाटर के लिए कैसा दिखता है. सो ध्यान से तुम लोग ग्राफ को देखना. हमने वाटर को किया हिट. इनिशियली वाटर क्या था, टेम्परेचर सपोज आइस था, उसको हमने हिट किया. सो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 0 से 4 डिग्री. तो वॉल्यूम क्या हुआ तुम्हारा, डिक्रीज हुआ. दिस इज क्वाइट शॉकिंग कि तुम इसको हीट दे रहे हो और इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, इसका वॉल्यूम घट रहा है. So here if you see at 0 degree volume is this one, and as temperature is increasing from 0 degree to 4 degree, यहाँ पे वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो रहा है, घट रहा है. डन है. सो वॉल्यूम घट रहा है यानी कि वाटर कॉम्प्रेस हो रहा है एज वी आर हीटिंग. डन है. और टेम्परेचर को अब हम लोग 4 डिग्री से ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम अभी भी घटेगा नहीं, अब वॉल्यूम बढ़ने लगा. सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखो 0 डिग्री पे सर्टेन वॉल्यूम था आइस का, उसको जब हमने हिट किया तो वो कॉम्प्रेस हुआ, 4 डिग्री तक कॉम्प्रेस हुआ, उसके बाद वो एक्सपैंड करने लगा. तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कहाँ है, मिनिमम वॉल्यूम कहाँ है, 4 डिग्री पे, है ना. यानी कि डेंसिटी सबसे ज्यादा वाटर का कब होगा, 4 डिग्री पे. 4 डिग्री पे तुम्हारा वाटर का क्या होगा, डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा. इफ यू टॉक अबाउट 0 डिग्री पे भी नहीं, 4 डिग्री पे, क्योंकि 4 डिग्री पे उसका वॉल्यूम क्या है, सबसे कम है. तो डेंसिटी तुम्हारा क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर कम है तो डेंस क्या होगा, ज्यादा होगा डेंसिटी. ठीक है. सो दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, क्योंकि हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम और घट रहा है. अब देखो ये नेचर में काफी ज्यादा गुड थिंग है. जैसे यहाँ पे डेंसिटी का ग्राफ बना है, देखो डेंसिटी 4 डिग्री तक क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री तक वाटर कॉम्प्रेस हो रहा था. और हाईएस्ट डेंसिटी होगा 4 डिग्री पे, उसके बाद डेंसिटी वापस से घटेगा, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. अब देखो ये 4 डिग्री का खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 4 डिग्री पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो उसका रोल क्या है. सो उसका रोल है तुम्हारा एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल पे. जैसे अभी ठंडे का टाइम है, कोल्डर रीजन, पोलर रीजन में चले जाओ, टेम्परेचर काफी डाउन जाएगा. सो सपोज कर लो टेम्परेचर 10 डिग्री से डाउन होने लगा, तो 10 से 9 आया, 9 से 8, 7, 6, 5, जैसे ही 4 डिग्री टेम्परेचर आएगा पानी का, पानी काफी हेवी हो जाएगा. तो वो पानी तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, अंदर, क्योंकि जो भारी है वो डूब जाएगा. सो वो गया अंदर. अब 5 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला वाटर क्या हो जाएगा तुम्हारा, उससे कम डेंस होगा तो वो ऊपर रहेगा. 2 डिग्री वाला उससे भी कम होगा, डेंस होगा. ठीक है, एंड सो ऑन. सो कहने का मतलब ये है कि तालाब के सबसे अंदर के हिस्से में जो टेम्परेचर है दैट इज योर 4 डिग्री. सो फिश कैन सर्वाइव, लेकिन अगर अंदर का टेम्परेचर -10 हो गया तो मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना. सो दिस एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ. और ये हमेशा याद रखना कि वाटर को जब हम हीट करते हैं फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, वाटर क्या होता है तुम्हारा, कॉम्प्रेस होता है, एंड 4 डिग्री के बाद फिर से एक्सपैंड करने लगता है. डन है. सो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है 4 डिग्री, and which is very much helpful for the sustenance of aquatic life. So ये है तुम्हारा एक इसका प्रॉपर्टी. जैसे देखो यहाँ पे फिश को दिखाया है, ये 4 डिग्री पे सर्वाइव कर पाएंगे. डन है. सो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले टेम्परेचर है क्या, सो मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. फिर हमने टेम्परेचर स्केल पढ़ा, एक का दूसरे में कन्वर्जन पढ़ा. उसके बाद बॉयल्स लॉ पढ़ा, जिसमें कि क्या था, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा था. चार्ल्स लॉ पढ़ा, यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था. आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, एक्सपेंशन पढ़ा, और तुम्हारा इन तीनों के बीच का रिलेशन पढ़ा. एंड फाइनली वाटर कैसे एक्सपैंड करता है वो हमने देखा. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये अल्फा भी डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे. अल्फा एल और अल्फा ए ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है. ठीक है. और अल्फा भी हमने सॉलिड के लिए भी पढ़ा और गैसेस के लिए भी पढ़ा.
ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास यानी कि कल के क्लास में व्हाट आई विल बी टीचिंग यू, आई विल स्टार्ट विथ कैलोरीमेट, ठीक है, और हीट ट्रांसफर। ये मेरा टॉपिक है कल के क्लास के, ठीक है। एनीवन हैविंग डाउट सो फार इन दिस थिंग? किसी को भी डाउट है ये टॉपिक में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में किसी को डाउट है तो तुम स्टे कर सकते हो, यू कैन आस्क विथ मी। ओके हरमित, प्लीज यार तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़कर, तुम लोग प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। डन है। So everyone take care of yourself and thank you for your patience. Thank you so much for texting me while I was asking so much about am I audible or not. So your help was really so much help for me. So thank you so much for being this much lovely and good and kind. Bye bye. Take care and keep reading and keep being more good. Thank you. Bye bye everyone.